चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14, अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। सभी श्लोक रिपीट करिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भव पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भव पर्जन्यतन्त्र असंभवा। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भव पर्जन्यादं संभवा। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञा भवन्ति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म समुद्भवा। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। प्रभु जी, may I read? यस प्लीज। All living bodies subsist on food grains which are produced from grains. Grains are produced by performance of yajna, sacrifices, and yajna is born of prescribed duties. Sri Baladev Vidya Bhushana, a great commentator on the Bhagavad Gita, writes as follows: ये इंद्रिय अनगनत प्रयासति तम यजनम सर्वे शरणम विष्णु अभ्यचरात तक चेशम अशांति तेन तद देह यात्रम संपदायन्ति तु संते सर्वेश्वरया यज्ञ पुरुष भक्त सर्व किबिलशिर आनंदी कला विवर्धया आत्मा भुनेतु प्रतिदानतरम निखलाम पापर पैपर विमोच्यते. The Supreme Lord, who
is known as the Yagya Purusha, on the personal beneficiary of all sacrifices, is the master of all demigods. To serve him as the different limbs of the body, serve the whole demigod like Indra, Chandra, and Varun are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas directly sacrifice to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, light, and water sufficiently to produce food grains. When Lord Krishna is worshipped, the demigod who are different limbs of the Lord are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate need to worship the demigod. For this reason, the devotee of Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, but the body become immunized to all contaminations of material nature. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protect a persons from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us make us sufficiently resistant to material affection. And one who is accustomed to this practice as is called a devotee of Lord. Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past material infections, which are impediment to the progress of self-realization. On the other hand, one who does not do so continuous to increase the volume of sinful actions, and this prepare the next body to resemble hogs and dogs to suffer the resultant reaction of all sins. The material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, food offered to Vishnu is saved from the attack, whereas one who does not so become subjected to contamination. Food, grains, or vegetables are factually established. The human being eats different kinds of food, grains, vegetable, fruit, etc., and the animal eats the refuse of the food, grains, and vegetables, grass, plant, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and flesh must also depend on the production of vegetations in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by demigods like Indra, sun, moon, etc. And they are all servants of Lord. The Lord can be satisfied by sacrifice. Therefore, one 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 who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yajna, especially the Sankirtanam Yajna, prescribed for this age, must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. जय जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम हरे कृष्णा महामंत्र की जय हो। जय जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्णा, प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। किसी के पास हिंदी में कॉपी है? प्रभु जी मेरे पास है। ठीक है, और कोई एक बार पूछ लेते हैं, और कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जी प्रभु जी। 3.14 ना प्रभु जी? हाँ 3.14।
जी प्रभु जी। भावार्थ, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य, भगवत गीता के महम टीकाकर शील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रिया इंद्रियावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु अभैश्चर्य तक्षेषन्ति तेन तद्धे यातम संपादयन्ति ते संतः स्वस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्व किल्बिषरे अनादिकाल द्वे आत्मानु प्रतिबंध निखिले पापे विमुष्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रश्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों शुक्रों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से भाग जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक की ही खाते हैं। अतएव हमें अंततः खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। तो इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है भगवान के बारे में और देवताओं के बारे में, कि मनुष्यों में, देवताओं में और भगवान में क्या संबंध है। ये क्लियर यहाँ पे एकदम स्पष्ट भाषा में बताया गया है। तो हम सब ब्रह्म है, पर हम ब्रह्म का अंश है। मतलब भगवान कृष्ण पर ब्रह्म है और हम सब भगवान के अंश है। तो अंश होने के नाते हमारे अंदर भी भगवान के गुण होते हैं। हम भी कुछ हद तक नियंत्रण जैसे भगवान में नियंत्रण करने की शक्ति है और देवताओं में नियंत्रण करने की शक्ति है, तो वही हमारे में थोड़ी मात्रा में होती है। हम छोटे लेवल पे नियंत्रण कर सकते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं या हमारा जो क्षेत्र होता है कार्य का, उसमें हम कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। पर हम देवताओं की तरह या भगवान की तरह सृष्टि को नहीं चला सकते। जो बड़े बड़े नियंत्रक होते हैं
जैसे सूर्य देव है, चंद्रदेव है, इंद्रदेव है, वायुदेव है, अग्निदेव है। ऐसे वेदों में, उपनिषदों में, गीता में बहुत सारे देव बताए हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि जितने भी देवता है ये सब भगवान के अंग है और भगवान के अंश है। तो इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान है और हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें भगवान का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करने का मतलब है फॉलो करना, भगवान के गुरु के पीछे पीछे चलना, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, उसी तरह से गुरु भी सर्वशक्तिमान है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं दैट वैष्णव इज़ ऑल पावरफुल। जो वैष्णव भक्त होता है, जो शुद्ध होता है, पूरी तरह भगवान की सेवा में समर्पित होता है, वो भगवान की तरह ही सर्वशक्तिमान होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव इज़ 1 in a billion। जैसे श्लोक आता है भगवत गीता में, मनुष्य नाम सहस्रेषु, हज़ारों लाखों करोड़ों में कोई एक भक्त होता है जो भगवान कृष्ण को और गुरु को फॉलो करता है। तो इसलिए हमें गुरु के पीछे पीछे चलना है, शिला प्रभुपाद के पीछे पीछे चलना है और हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। तो जैसे कार्य कृष्णा ने किए, भगवान ने किए या फिर शिला प्रभुपाद ने किए, वैसे कार्य हम नहीं कर सकते, असंभव है और हम उनकी जगह ले भी नहीं सकते कभी। पर हमें उनके पीछे चलना है, हमें शिला प्रभुपाद जी के पीछे चलना है। वो जैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं वैसे हमें पीछे पीछे चलना है। तो जैसे भगवान के अंग में सारे देवता होते हैं, वैसे ही गुरु के अंग में सारे देवता होते हैं। तो इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिव भगवान, ये सब शिला प्रभुपाद जी के अंग में हैं। और प्रभुपाद जी के जो आदेश है, इंस्ट्रक्शन है, वो साक्षात भगवान के इंस्ट्रक्शन है। तो इसीलिए हमें गुरु में और भगवान में, गुरु और भगवान को एक ही स्तर पे रखना चाहिए और उनके पीछे चलना चाहिए। गुरु जो है वो परंपरा के पीछे चल रहे हैं, परंपरा भगवान के पीछे चल रही है और हमें प्रभुपाद जी के पीछे चलना है। तो इस तरह से हम भी परंपरा में आ जाएंगे, हम भी उस लाइन में आ जाएंगे जो भगवान के पीछे चल रहे हैं। तो हमको अनुकरण नहीं करना है, ये बहुत डेंजरस है। और इस बात को ध्यान रखना है कि ये पूरी सृष्टि जो है वो एक योजना के अंतर्गत चल रही है, एक प्लानिंग है इसके पीछे। और इस प्लानिंग के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें फिर प्रॉब्लम नहीं आती है, हमें कोई रोग नहीं आता है या कोई पाप नहीं लगता है अगर हम गुरु के पीछे पीछे चलते हैं तो। पर अगर हम भटक जाते हैं, गुरु की बात नहीं मानते हैं, उनके मतलब उनको जीवित नहीं मानते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हम अभी उनसे आगे चले गए हैं, हम अब उनसे बेटर प्रीचिंग कर सकते हैं और गुरु ने जो किया उससे हम आगे चले गए हैं, तो ऐसा अगर हम सोचते हैं तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि हम कभी भी गुरु के आगे नहीं जा सकते, गुरु हमेशा हमारे आगे रहते हैं और गुरु हमारे 2 कदम आगे रहते हैं हमेशा। तो हमें तो बस उनके पीछे चलना है और उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। गुरु को फॉलो करने से सारे रिज़ल्ट आते हैं और हमको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। पर अगर हम गुरु को फॉलो नहीं करते हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी नहीं मिलता है। तो अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है हमारी गलतियों की वजह से, बट हमें फिर से गुरु के चरण में आ जाना चाहिए, गुरु की शरण में आ जाना चाहिए। तो अगर प्रॉब्लम आती भी है तो वो उसको हल कर देते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि गलतियाँ तो हमसे होने ही वाली है, हम परफेक्ट नहीं हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट, हम लोग परफेक्ट बनने का ट्राई कर रहे हैं, बट वी आर नॉट परफेक्ट। हम अभी परफेक्ट नहीं हैं, हम अभी परफेक्शन से काफ़ी दूर हैं। तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए कभी कि मैं परफेक्ट हूँ। हमेशा हमें अपना नमस्कार करना चाहिए गुरु को और उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। तो फिर गुरु हमसे कोई गलती नहीं होने देते, वो सब कुछ हमसे परफेक्ट काम करवाते हैं। जैसे पिता या टीचर होता है, वो बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाता है, ABCD ऐसा लिखना सिखाता है, तो फिर बच्चा गलती नहीं करता, क्योंकि उसके पिताजी ने, उसके टीचर ने उसका हाथ पकड़ के उसको लिखना सिखा रहे हैं, उसको बोलना सिखा रहे हैं, उसको चलना सिखा रहे हैं।
हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, फिर साइकिल पकड़ के साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको ड्राइंग करवा रहे हैं, ABCD लिखवा रहे हैं। तो जब माता पिता उसको हाथ पकड़ के करवाते हैं या गुरु हाथ पकड़ के कराते हैं तो कोई गलती नहीं होती है। पर गलती तब होती है जब हम सोचते हैं कि अब मेरे को गुरु की ज़रूरत नहीं है, अब मैं उनसे आगे चला गया हूँ, मैं उनसे बेटर बन गया हूँ। ऐसा जब हम सोचते हैं तो फिर माया हमको पकड़ लेती और फिर हम वापस से भक्ति से नीचे गिर जाते हैं, भगवान की सेवा हमसे नहीं हो पाती है, फिर हम वापस माया में आ जाते हैं, माया के संपर्क में आ जाते हैं और फिर हमारा पतन होने लगता है धीरे धीरे करके। तो इसीलिए हमेशा गुरु के पीछे चलना है और गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना है। गुरु का मतलब है कि वो सिद्ध है, वो नित्य मुक्त है, वो इस संसार से जन्म मृत्यु से मुक्त हो चुके हैं, तो वो परम पद पे जा चुके हैं। जो भगवान कृष्ण के चरणों को परम पद कहा जाता है, तो परम पद पे वो पहुंच चुके हैं गुरु। और हमें भी अगर मुक्ति चाहिए और अगर हम चाहते हैं कि हमें आनंद चाहिए लाइफ में, हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए मन की, तो हमें बस प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलना है, उनको ओवरटेक करने का ट्राई नहीं करना है कि प्रभुपाद जी ने इतने शिष्य बनाए, इतने मंदिर बनाए, अब हम उससे ज़्यादा बनाएंगे और फिर हम प्रूव कर देंगे कि हम प्रभुपाद जी से आगे चले गए। ऐसी पागलपन, ऐसी मूर्खता नहीं करनी है। हमें बस ये सोचना है कि प्रभुपाद जी अभी भी सब कुछ कर रहे हैं और वो फैक्ट है कि वो अभी भी सब कुछ कर रहे हैं और हमसे भी करवा रहे हैं, और हमें तो बस उनको फॉलो करना है। वो हमारे कमांडर है, श्रील प्रभुपाद हमारे डायरेक्टर हैं और हमें तो बस उनका डायरेक्शन फॉलो करना है और हमें उनके पीछे चलने से हम इजीली इस माया को क्रॉस कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि हमें बस प्रभुपाद जी के बोलने के अनुसार हमें 4 नियम का पालन करना है, 16 माला करनी है कम से कम, बुक्स पढ़नी है और लेक्चर सुनने हैं और जितना हो सके प्रसादी खाना है और हमें इसका प्रीचिंग भी करना है, दूसरों को भी बताना है। तो ये जो 4-5 एक्टिविटीज़ हैं इसको हमें बस अच्छे से फॉलो करना है जैसा प्रभुपाद ने बोला है, तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में और सब कुछ स्मूथली चलेगा, अच्छे से चलेगा और आपके मन से डर भी निकल जाएगा। मरने का डर, मृत्यु का डर, किसी भी प्रकार का डर जो है आपके मन से निकल जाएगा और फिर आप चलते रहोगे बस। बॉडी के जो लिमिटेशंस है वो आप पे असर नहीं करेंगे। तो ये जो बॉडी है इसमें जन्म मृत्यु होता है, बट आत्मा के लिए जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो अगर आप प्रभुपाद जी को फॉलो करेंगे तो आप आत्मा के लेवल पे आ जाएंगे और आत्मा के लेवल पे फिर टाइम का असर नहीं होता है। आप हज़ारों साल तक आप फॉलो कर सकते हैं और आपको कॉन्शियसनेस भी रहेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, तो मेरे को तो मृत्यु हो नहीं सकती कभी। तो ये कॉन्शियसनेस ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा। तो हमेशा ज़िंदा रहूँगा मतलब हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सेवा करनी पड़ेगी प्रभुपाद जी की, और प्रभुपाद जी को अगर मैं फॉलो करता रहूँगा तो मैं हज़ारों साल तक मरूँगा नहीं, ज़िंदा रहूँगा और उनको फॉलो करता रहूँगा। तो मेरी बॉडी पे कोई टाइम का असर नहीं होगा। बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, ये सब टाइम का असर होता है। बट जो व्यक्ति गुरु को फॉलो करता है, कृष्णा को फॉलो करता है, उस पर, उसकी बॉडी पे, उसके माइंड पे, उसके इंटेलिजेंस पे टाइम का असर नहीं होता है और वो फिर चल सकता है, हमेशा के लिए वो फॉलो कर सकता है, वो कभी मरेगा ही नहीं। तो यही सीक्रेट है, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक सीक्रेट है, ये साइंटिफिक, ये एक सीक्रेट है जो लोगों को पता नहीं है। अब लोग समझ नहीं पाते कि ये लोग हरे कृष्णा क्यों बोलते रहते हैं और ये प्रभुपाद जी की जय क्यों बोलते रहते हैं और हमेशा उनको फॉलो क्यों करते रहते हैं। तो लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए उनको बुढ़ापा आता है, उनको मृत्यु आती है, उनका बॉडी चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको सत्य पता नहीं है, उनको रियलिटी पता नहीं है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। और हमको पता है क्योंकि हम प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं और हमको एक्सपीरियंस भी है कि इतने सालों से हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हमें बस इसको फॉलो करते रहना है, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे ऊपर टाइम का भी असर नहीं होगा। और ये जितने भी देवता यहाँ बताए हैं वो भी, उनकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है। सूर्यदेव है, चंद्रदेव है, इंद्रदेव है, ब्रह्मा जी है, इन सब के जीवन, इनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी होती है। तो हम भी अगर प्रभुपाद जी को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी भी लाइफ स्पैन बहुत लंबी होगी और
हम मरेंगे ही नहीं, हम बस चलते रहेंगे। इनफैक्ट ब्रह्मा जी और देवताओं को भी मृत्यु आती है, बट अगर हमने प्रभुपाद जी को फॉलो किया तो हमको तो मृत्यु भी नहीं आएगी। तो फिर हम इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल सकते हैं और ब्रह्मा जी से भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी बुढ़ापा आता है, उनकी भी मृत्यु आती है, बट हम तो प्रभुपाद की कृपा से उनसे भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी मुक्त हैं और वो अभी भी हमारे लिए वेट कर रहे हैं कि हम कब उनको सरेंडर करेंगे, कब हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी इस माया से पहले से लिबरेटेड है, हमें बस उनको फॉलो करना है। तो प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलते चलते हम भी माया को क्रॉस कर जाएंगे और हमको भी डेथ और मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारियाँ ये सब हाथ नहीं लगा पाएगी, और अभी जो हम सफ़र कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक फ़ैन होता है, फ़ैन की स्विच बंद करो तो थोड़ी देर के लिए घूमता है वो। तो अभी हमारे शरीर में जो कुछ विकार आते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वो हमारे पास्ट एक्टिविटीज़, मतलब पहले हमने जो कर्म किए हैं उसकी वजह से अभी वो हमें फेस करना पड़ता है। बट भक्ति करते करते वो भी सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका भी लिमिटेड टाइम होता है। जो कर्मों के फल आप भुगतते हो, जैसे कोई जेल में जाता है तो 10 साल 5 साल ऐसा उसका सेंटेंस होता है, इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस होता है कि 5 साल के लिए जेल में गया, 10 साल के लिए गया। उसी तरह से हमको इस बॉडी में रखा है, इस मटेरियल बॉडी में, इसका भी एक लिमिटेड पीरियड है कि इतने टाइम तक सफरिंग होगी हमको। पर अगर हमने भक्ति शुरू कर दी और हमने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, भगवान को भोग लगाना, यज्ञ करना शुरू कर दिया, तो फिर धीरे धीरे ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो भी रिएक्शन आते हैं तो वो आना बंद हो जाता है, उसको हम क्रॉस कर जाते हैं और फिर उसके आगे हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है। फिर हम आराम से रह सकते हैं इस बॉडी के अंदर, और ये बॉडी भी ख़त्म नहीं होगी, इस पे टाइम का असर ही नहीं होगा। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि हम कॉन्टीन्यूसली भगवान को याद करें और हम उनको भूले ही नहीं, 1 सेकंड के लिए भी। जैसे हमने पहले के लेक्चर में ही बोला है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 86,400 सेकंड्स होते हैं, और हर सेकंड में कृष्णा का नाम लेना है। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था शायद सुबह या दोपहर को कि रात को सोते वक्त कैसे याद कर सकते हैं। सोते वक्त प्रभुपाद जी का मंत्र लगा के सोना है, जो उनका मशीन है या लैपटॉप पे या मोबाइल पे, उनका जो एक हरे कृष्णा चैंटिंग का वीडियो है या ऑडियो है, उसको लगा के रात को सोना चाहिए। तो रात को तो हम सोते वक्त तो बोल नहीं सकते, बट कम से कम हमारे कानों में वो हरे कृष्णा जाता रहता है, और हम फिर सोते हुए भी हम भगवान का नाम सुनते रहते हैं। तो भगवान का नाम कॉन्टिन्यूसली चलता रहना चाहिए, आपकी ज़बान पे, आपके कानों में, आपकी नज़रों के सामने हमेशा भगवान का नाम रहना चाहिए। इसलिए कुछ डिवोटीज़ है जो अपने कमरे में, अपने घर में, सब जगह पे हरे कृष्णा लिख के रखते हैं, या भगवान की फ़ोटो लगा के रखते हैं, नीचे हरे कृष्णा लिख के रखते हैं। तो मतलब जहाँ पे भी नज़र जाती है तो हरे कृष्णा ही दिखता है, भगवान ही दिखते हैं। और रात को सोते वक्त भी मंत्र लगा के सोते हैं, तो कानों के अंदर हरे कृष्णा चलता रहता है। फिर सुबह उठते ही मंगल आरती, फिर 16 माला जाप, और फिर से वही जो प्रोग्राम प्रभुपाद ने बताया है वही कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसका मतलब कि 1 सेकंड के लिए भी हम भगवान को भूलते ही नहीं हैं। तो अगर इसमें हम परफेक्ट हो गए, भगवान को याद करने में, भगवान का नाम लेने में अगर हम परफेक्ट हो गए, तो फिर हमको मृत्यु भी हाथ नहीं लगा सकती। हम फिर इस मटेरियल वर्ल्ड से मुक्त होकर हम भगवान के पास चले जाते और वहाँ पे हमेशा रहते हैं, हमको वापस इस बॉडी में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो यही बेस्ट तरीका है लाइफ जीने का, हमें यज्ञ करते रहना है। ये जो आज का पूरा श्लोक है ये यज्ञ के बारे में है कि यज्ञ का क्या इम्पोर्टेंस, भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना। और सबसे बेस्ट सेक्रीफाइस जो यहाँ बताया प्रभुपाद ने कि हरे कृष्णा का चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस हरे कृष्णा का चैंटिंग कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए, तो फिर हम लोग बचे रहेंगे, हमको मृत्यु नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, और हम सारे हमारे कर्मों के फल से मुक्त हो जाएंगे, और फिर हम लोग हमेशा जी सकते हैं। मतलब हमको फिर किसी बात का टेंशन नहीं रहेगा कि मरना पड़ेगा, बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे में प्रॉब्लम्स आएगी, उसके लिए इंश्योरेंस निकालो, ये करो वो करो, वो सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा इंश्योरेंस है भगवान का नाम,
जब तक भगवान का नाम चल रहा है तब तक हम सेफ हैं, तब तक हम सिक्योर है। जैसे ही भगवान का नाम छूट जाएगा माया में आ जाएंगे हम लोग, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर मृत्यु आएगी। तो हमें अगर उससे बचना है तो नाम लेते रहना है, हरे कृष्णा बोलते रहना है और भगवान का स्मरण करते रहना है, तो फिर मृत्यु भी हमारे आसपास नहीं आ सकती कभी। तो ये इसका तात्पर्य है, इसमें यज्ञ का इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। मेरा ये डाउट है कि जैसे आपने कहा कि देवताओं की भी मृत्यु आती है, तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज़ नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार। अभी आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि देवताओं की भी मृत्यु आती है, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है उनके साथ, मैं ये जानना चाहती हूँ। उनको भी जन्म लेना पड़ता है वापस। एज ए देवता उन्होंने जो कर्म किए होंगे उसके अनुसार उनको या तो वापस देवता योनि में ही मिलेगा, या अगर उन्होंने भक्ति की अच्छे से तो उनको लिबरेशन भी मिल सकता है। और अगर उन्होंने कुछ गलत काम किए, कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं या कुछ अन्याय किया है मनुष्य के साथ या किसी के साथ भी, तो उसको हो सकता है अपनी पोजीशन से नीचे भी आना पड़े। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लीडर होते हैं, बट वो अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं, या तो कोई उनको मार देता है या तो इलेक्शन हार जाते हैं, तो उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। तो कुछ टाइम तक वो एंजॉय करते हैं बड़ी पोजीशन पे, बट बाद में उसको नीचे भी आना पड़ता है। तो देवताओं के साथ भी ऐसा होता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है स्क्रिप्चर्स में। जैसे प्रभुपाद जी एक बताते हैं, इंद्रदेव जो है, इंद्रदेव एक बार उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया, तो उनको सुअर की बॉडी में आना पड़ा इस प्लेनेट पे, अर्थ पे। और सुअर की बॉडी में आके वो गंदी चीज़ें खा रहे थे। तो फिर स्वर्ग से कोई आया, कोई ऋषि आए और उन्होंने उनको याद दिलाया कि तुम पहले इंद्र थे स्वर्ग में और तुम अभी कुछ अपराध की वजह से नीचे गिर गए हो, तुम सुअर बन गए हो। तो फिर सुअर की बॉडी में से इंद्रदेव ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी फैमिली है, हम लोग सब मिलकर ये गंदी चीज़ें खा रहे हैं, हमको मज़ा आ रहा है, तो आप जाइए, मेरे को नहीं आना है स्वर्ग में। तो वो जो ऋषि है वो अपने सिर पे हाथ रख के वापस चले गए स्वर्ग में कि ये तो पागल हो गया है, पहले स्वर्ग का राजा था, अभी सुअर की तरह वो गंदी चीज़ें खा रहा है। तो मतलब ये माया इतनी स्ट्रांग है कि हमसे इतने गंदे अपराध हो जाते हैं और फिर हम अपनी पोजीशन से नीचे गिर जाते हैं और फिर हमको लगता है कि उसी पोजीशन में रहना ही बेटर है क्योंकि उसमें हमको एन्जॉयमेंट मिल रही है। तो ये हमारी पागलपन है। एक्चुअली भगवान की सेवा ही सबसे बेस्ट है। अगर आप देवता भी है या ब्रह्मा जी भी है, आप चाहे हाई पोजीशन पे, बहुत इस यूनिवर्स में ऊपर भी प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे हाई पोजीशन में रहते हैं देवता, पर वहाँ पे रहकर भी हमको मन में अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा देवता हूँ या मेरे पास बहुत पावर है। ऐसा अहंकार आता है तो फिर वो नीचे गिर जाता है और उसको वापस से जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए भक्ति का जो मेन प्रिंसिपल है, अमानिना मान देना। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हमेशा सबको मान सम्मान देने के लिए तैयार रहो और हमेशा हरे कृष्ण जपते रहो और कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अपने आप को एकदम नीचा मानना है और भक्त तो अपने आप को कभी ऊंचा मानता ही नहीं है, वो हमेशा नीचा ही मानता है अपने आप को। और वो हमेशा प्रीचिंग करता रहता है हरे कृष्णा का और हमेशा चैंटिंग करता रहता है। तो इसलिए भक्त के मन में अहंकार आता नहीं है। तो इसलिए भक्त जो है वो तो देवताओं से भी ऊपर होता है, क्योंकि कभी कभी देवता भी नीचे गिर जाते हैं बट भक्त कभी नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करता रहता है। उसमें ईगो नहीं होता, अहंकार नहीं होता, वो डाउन टू अर्थ होता है हमेशा। इसीलिए भगवान हमेशा भक्तों को सपोर्ट करते हैं और उनको वो लिबरेट कर लेते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से। तो इसलिए भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमारा अहंकार कंट्रोल में रहता है और हम अपने आप को हमेशा नीचा मानते हैं। और फिर जो अपने आप को नीचा मानता है और दूसरों को रिस्पेक्ट करता रहता है,
वो हमेशा चैंटिंग कर सकता है, हमेशा भक्ति कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जो भक्त है वो देवताओं से भी ऊपर होते हैं, तो इसका मतलब देवता भी भक्तों के सामने हाथ जोड़ते होंगे, उन्हें प्रणाम हाँ करते होंगे। हाँ करते हैं। ये शिला प्रभुपाद ने बोला है कि वैष्णव इज़ ऑल पावरफुल लाइक कृष्णा, और वैष्णव को तो देवता भी हाथ जोड़ते हैं, और देवता वैष्णव से अपराध करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वैष्णव अपराध अगर हो गया गलती से भी, जैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान के प्रति अपराध किया था, उनका सिर कट गया था, उनको फिर एक बकरे का सिर लगाना पड़ा था उनको, क्योंकि उनका सिर कट गया था, क्योंकि उन्होंने शंकर भगवान के प्रति अपराध किया था। तो शंकर भगवान भी बहुत बड़े वैष्णव हैं। और जो देवता होते हैं, अगर कोई प्रजापति है या कोई इंद्रदेव भी है या सूर्यदेव भी है, तो वो भी डरते हैं। जैसे हनुमान जी वैष्णव हैं, राम जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी ने तो सूर्यदेव को निगल लिया था। फिर देवताओं ने प्रार्थना की बहुत हनुमान जी से कि प्लीज़ सूर्यदेव को अपने मुंह से बाहर निकालिए। तो फिर हनुमान जी ने अपने मुंह से सूर्यदेव को बाहर निकाला था। तो जब तक वो अपने मुंह में रखा था, उन्होंने तो पूरे यूनिवर्स में अंधेरा हो गया था कि सूर्यदेव उनके मुंह में चले गए थे, हनुमान जी। तो वैष्णव इतने पावरफुल होते हैं कि वो सूर्य को भी निगल सकते हैं, बट हमें उनको कॉपी नहीं करना है। हम तो अगर एक ऑर्डिनरी छोटी सी माचिस की तीली भी मुंह में डालेंगे तो मुंह जल जाएगा, बट हनुमान जी ने तो पूरा सूर्य अपने मुंह में डाल दिया था। और शंकर भगवान ने पूरा जहर का समुद्र मंथन से जो जहर निकला था वो पूरा अपने गले में धारण किया था। और कृष्ण भगवान ने पहाड़ उठा लिया था उंगली पे। तो भगवान कृष्ण और उनके जो भक्त है वैष्णव, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो मतलब उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल चीज़ें भी कर सकते हैं, पहाड़ भी उठा सकते हैं। हनुमान जी ने भी पहाड़ उठा लिया था। और मतलब वैष्णव और कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, पर हम उनको कॉपी नहीं कर सकते, हमें फॉलो करना है। अगर हम मुंह में अग्नि डालने की कोशिश करेंगे तो मुंह जल जाएगा, या हम जहर मुंह में रखने की कोशिश करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो हमें कॉपी नहीं करना है बिल्कुल। और प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा ने तो पहाड़ उठाया था, हम तो एक टेबल भी नहीं उठा पाएंगे उंगली पे। तो हमें अपनी लिमिटेशन को जानना है कि हम कितने छोटे हैं। हमें तो सिर्फ नाम लेना है, उनको फॉलो करना है बस। और अपने लेवल पे हम जितना कर सकते हैं उतना एकदम हम्बल तरीके से करना है, अपना रोल प्ले करना है और नाम लेते रहना है बस। तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम उनकी सेवा में रहेंगे हमेशा। बट अगर हम उनको कॉपी करने का ट्राई करेंगे तो फिर माया बहुत ज़बरदस्त हमको दंड देगी और फिर हमारा पतन हो जाएगा। और प्रभु जी, जैसे जो देवता हैं, इनको भी वैकुंठ जाने का मौका मिलता है, या मतलब मृत्यु मिलता है, जो जीवन होता है उसी में इनको मौका मिलता है? जी, आपकी आवाज़ एक तो ब्रेक हो रही है, और दूसरी बात टाइम पूरा हो गया है। मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, आप फिर से ज्वाइन करिए और अपना क्वेश्चन वापस पूछिए एक बार। जी प्रभु जी।